से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, सबको जोड़ता है। योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वर एट 20. Our time to be more resistant to disease at 70 than we were at 50. Our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep ourselves. That is why yoga for healthy aging. This theme must be seen as one for people of all ages. युक्त चेष्ट कर्म अर्थात संतुलित आहार विहार से संतुलित क्रिया, और यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख। આજના આ વિશેષ દિને હું ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા વિશ્વવિદ્યાલયના માનનીય કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર પ્રતાપસિંહજી ચૌહાણ સાહેબને આમંત્રિત કરું કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે। માનનીય પ્રતાપસિંહજી ચૌહાણ સાહેબ। આપણે બધા આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે બધા એકઠા થયા છે, ત્યારે પહેલાં તો તમને આ નવા કેમ્પસમાં આવકારું છું, સ્વાગત કરું છું, કારણ કે જેની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છે એ કેમ્પસ ઉપર આપણે આજ સામૂહિક યોગા આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ। આમ તો આપણા સન્માનીય પ્રધાનમંત્રીએ યોગ અને એની થનારી ભાવિ અસરો અને આ વખતનો જે વિચાર છે એ હેલ્ધી એજિંગ કેવી રીતે આપણે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને એમની પણ વિસ્તૃત માહિતી કે આપણે 40ના 50ના 60ના થાય ત્યારે આપણે કેવા દેખાય।
કે લોકો નિયમિત યોગ કરે છે અને છેલ્લે પ્રધાનમંત્રીની વાત એ પણ હતી કે આ એક માત્ર સંકલ્પ દિવસ, એક દિવસ એ યોગ કરવાની, આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવાની એ વાત તમને યાદ દેવરાવે છે કે યોગ એ આપણી પ્રાચીન એ શારીરિક માનસિક જે વ્યવસ્થાઓ આપણા ઋષિમુનિએ ઊભી કરી હતી એને આપણે જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ, અને નરેન્દ્રભાઈના એ પ્રયાસોથી આપણે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ એ સામૂહિક રીતે વિશ્વની અંદર એ મોટો ઉત્સવ તરીકે આજે બધા ઉજવી રહ્યા છે. મારું માનવું છે કે તમને જેટલું આમાંથી ફાવે એટલું 10-15 મિનિટ પણ શરીરને જો સમય સવારમાં તમે આપવામાં આવે તો આસનથી જે ફ્લેક્સિબિલિટી બોડીની થાય છે એ ખૂબ અદ્ભુત થાય છે. અને મેં ઘણા બધા લોકોને જોયા છે કે જે નિમિત્ત કરવાવાળા છે એની એજ એની જે હોય એના કરતાં પણ ઘણી નાની અને ખૂબ સારી રીતે સંતોષથી એ કામ કરી શકે છે. આપણે પણ આ વખતે એક પ્રયાસ કર્યો કે મેઇન બિલ્ડિંગની સામે આપણું આ પટરાગરણ આખું એક મોટું વિકસી રહ્યું છે, એટલા માટે બીજી જગ્યાએ ગયા વખતે તો હું આવ્યો ને બીજે ત્રીજે દાડે જ યોગનો કાર્યક્રમ હતો તો જ્યાં હતો ત્યાં આપણે કર્યો. આ વખતે આપણા રજિસ્ટ્રાર અને સૌ લોકોની ઈચ્છા હતી કે આપણો યોગનો કાર્યક્રમ આપણા કેમ્પસમાં થાય, આપણી સ્વયાતી વ્યવસ્થા ઊભી થાય. એના માટે આપણે બધાએ આજે અહીંયા એકઠા થયા છે. આપ સૌને હું યોગ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું કે આપણે આપણા જીવનની અંદર કેટલું થાય છે એ બહુ અગત્યનું, રેગ્યુલર થાય છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને તમે બધા સક્ષમ બનો શારીરિક અને માનસિક રીતે. યોગનો પહેલો પ્રભાવ શરીર ઉપર પડે છે અને પછી બીજો વિભાગ ધીરે 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 તમારા મન ઉપર પડે છે, અને બંને ઉપર જ્યારે શરૂ થાય ત્યારે એના પરિણામ એ તમને અનુભવવા લાગો છો. એ જ યોગની એ સિદ્ધિ છે. તો હું તો ઘણા વર્ષથી 2000થી કરી રહ્યો છું, 2026 ચાલે છે અને મને 7-8 વર્ષ સુધી તો શારીરિક ક્રિયા લાગી, પણ હવે એવું દેખાય છે કે શારીરિક સાથે માનસિક ક્રિયા પણ છે. એનો પ્રભાવિત જે પરિણામ છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે હું વધુ નહીં કહી, કારણ કે તડકો પણ ધીરે ધીરે ઉનાળાનો જે છે એ આપણી ઉપર આવી રહ્યો છે, એટલે ઝડપથી આપણે યોગની ક્રિયા જે છે એ કરીએ બધાય. આપ સૌને યુનિવર્સિટી વતી મારા પર્સનલ બિહાફ આપ સૌનું હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. અને આપણે બધા આવી રીતે યોગથી જોડવાનું કામ પ્રધાનમંત્રીએ કીધું તો યોગ એ જોડે છે. આજે આપણે સવારની અંદર સામૂહિક રીતે રવિવાર છે તો પણ આપણે બધા અહીંયા પહોંચ્યા છે, કારણ કે આ આપણી પોતાની યુનિવર્સિટી છે. ભલે થોડાક છે પણ એનું જે આખું એક દ્રશ્ય જે અહીં ઉત્પન્ન થશે એ ખૂબ અદ્ભુત થશે. અને હું આપણી ટીમને, સ્પોર્ટ્સ ટીમને, રજિસ્ટ્રાર આપ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે આમાં મારી કોઈ પણ નાની મોટી પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, અને છતાં પણ તમે મારી જે અપેક્ષા છે એના કરતાં પણ ઘણું સારું મારું બાંધકામ વિભાગના બધાએ ભેગા થઈને કર્યું છે. એ બધાને પણ હું હૃદયપૂર્વક એમનો પણ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. તેમના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે આપણે સૌ अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर गतिविधियों की सहजता के लिए
हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। विचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हथौड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव। गर्दन के स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ की दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में
10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे। वृक्ष का अर्थ है पेड़। अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। यह सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोण क्षतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्रा अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। तो वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए
वापस वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभ से आराम दिलाता है। यह उदर रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के खींचें। अपनी टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभ आसन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को ढकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे
अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्या, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है, अंदर के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में
अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन गण